So students, in this video we will discuss our topic of chapter 6. Right, in the last video we had discussed about that how we can assign some value to the variable and how we can print the value of that particular variable. Okay, we have learned that how we can use the type function. What is the use of type function? Okay, let me show you something else. Like I'm right here a equal to mid 10, here b equal to mid 10.5, right? C equal to min like 4 of, and here I want to print the type of ABC, right? Print type type of A. Now copy, paste and paste, and the change the value of this, that is B. Here you have to write C, right? Now save your file, go to the run, and here you are getting the result. So we are printing the type of ABC, right? So in the variable A we have assigned integer value, that is 10, so that's why we are getting integer here. In the B we have assigned float value, that is decimal value, that's why we are getting float. In the C we have assigned what? Goro, that is your string value. Why it is string? Because it is in between the double quote. You can also write this particular string in the single quote also, right? समझ में आया? So here we are printing the type of A, type of B and type of C. So this is the use of type function. Print function का तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है? Like print welcome to Python language. Right? So in the print function I have written string here, right? Now save your file, go to the run, and you are getting welcome to the Python language, right? अब देखो, suppose here I've assigned a equal to me 20, okay, and we are printing the value of a. Save your file, go to the file, sorry, go to the run, and you are getting 20 here, right? It is correct. लेकिन क्या ये ऐसे हो सकता है? 20 equal to a, save your file, go to the run and click on run module. Cannot assign to the literal, cannot assign to the literal. अब देखो ये हमें एरर क्यों मिल रहा है? एरर दोबारा देखिए आप क्या मिल रहा है. कांट असाइन टू लिटरल, ठीक है? कांट असाइन टू लिटरल का मतलब ये है दैट दिस particular 20 is your literal and this particular a is your variable. It means what? You can't assign a variable to the literal, ठीक है? आप किसी literal वैल्यू के अंदर वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते. यू कैन असाइन लिटरल टू द वेरिएबल, ठीक है, बट यू कांट असाइन वेरिएबल टू द लिटरल. अब देखो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट वैल्यू, और असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट में होता है उसको हम बोलते हैं राइट वैल्यू, राइट? समझ में आया? अब आपकी जो लेफ्ट वैल्यू है ना असाइनमेंट ऑपरेटर की, वो क्या होनी चाहिए? वो हमेशा क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफायर होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल होनी चाहिए. यू कांट हैव literal on the left hand side, okay?
जैसा कि आपको इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू में 20, नाउ इट इज़ करेक्ट। वाई? बिकॉज assignment operator says that you can assign some literal value to the variable, but you can't assign a variable to the literal। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि आप कोई लिटरल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू के अंदर असाइन नहीं कर सकते। ओके, सो ये जो a है ये हमारा क्या है, l वैल्यू है, दैट इज लेफ्ट वैल्यू, जिसको हम l वैल्यू भी बोलते हैं। और ये हमारी क्या है 20, दैट इज लिटरल कांस्टेंट राइट वैल्यू, दैट इज r वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका l वैल्यू का और r वैल्यू का। तो कई बार आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, दैट व्हाट इज l वैल्यू, व्हाट इज r वैल्यू, कैन r वैल्यू बिकम l वैल्यू और l वैल्यू बिकम r वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया ना, आई विल गो रन मॉड्यूल, हियर आई एम गेटिंग 20। ठीक है, नो एरर। तो अब आपको समझ में आया कि एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आर वैल्यू के अंदर आप लेटरल भी रख सकते हो और क्या रख सकते हैं, एक्सप्रेशन। आई होप यू नो व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल टू में 10, जल्दी से देखेंगे 20, और फिर सी इक्वल टू में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या है, ए प्लस बी है। वैसे तो ये 10 और 20 भी एक्सप्रेशन है, लेकिन हम मोस्टली किसको समझते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी इज अ expression and it is a combination of operands and operator। operands क्या होते हैं, operands are the values on which you want to perform some action or operation, and operator is nothing but it indicates that which type of operation you are going to perform, right? So now save your file, go to the run, click on run module, so you will get oh, you will get a only. Why? Because the value of a is 10, we want to print the value of c na, so here you are getting 30। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो सब था कि हम पहले से ही वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, बट व्हाट इफ दैट यू वांट टू गेट सम वैल्यू फ्रॉम द यूजर साइड। आप क्या चाहते हैं, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हमने पहले ए के अंदर वैल्यू को असाइन किया, फिर बी को असाइन किया, और फिर सी की वैल्यू के अंदर हमने ए प्लस बी को असाइन किया, फाइनली वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, हम अभी तक ये कर रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम रन हो जाए, उसके बाद वो यूज़र से वैल्यू बोले कि नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको एक प्रोग्राम बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। सो लेट्स ट्राई। तो देखिए, अगर आपको इस टाइप का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम जो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज योर टाइप फंक्शन is used, right? So type function is used to get the value of a variable from the user side। ठीक है, अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेनी है तो उस टाइम पर आप क्या यूज़ करेंगे, टाइप फंक्शन को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप फंक्शन लिखते किस तरीके से हैं। अब देखिए, जो टाइप फंक्शन है ना, अब मैंने आपको एक बताया था जब मैंने प्रिंट फंक्शन को डिस्कस किया था, दैट प्रिंट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बट योर इनपुट फंक्शन रिटर्न समथिंग विच इज़ ऑलवेज इन द स्ट्रिंग फॉर्म। ठीक है, आपका जो प्रिंट फंक्शन है वो तो कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन आपका जो इनपुट फंक्शन है वो रिटर्न करता है, और वो जो वैल्यू को रिटर्न करता है विच दैट इज़ ऑलवेज इन द स्ट्रिंग फॉर्म। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें वेरिएबल ए लेना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट करना है।
इनपुट फंक्शन हमने लिखा। मैंने क्या बताया था, फंक्शन क्या होता है, एक सिंपल नेम और उसके बाद अगर पैरेंथेसिस होती है तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। सो हियर आई एम राइटिंग इनपुट, तो उसके बाद मैं पैरेंथेसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ एक मैसेज दैट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है। नाउ सेव योर फाइल, go to the run, click on run module. So here it is asking what, enter the value of a. So here I am entering the value of a, that is 10, enter, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने एक ही लाइन लिखी है, इसी वजह से हमारे पास नेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, p की वैल्यू को मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। Okay, save your file, run, click on run module. Here it is asking enter the value of a. So here I am okay, मैंने वैल्यू को चेंज नहीं किया, मैंने 20 लिखा, ठीक है। इट इज़ वर्किंग, यहाँ पर आपको b लिखना है, ठीक है। नाउ सेव योर फाइल, गो टू द रन, 10, एंटर द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 20, ठीक है। दैट सही काम कर रहा है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, c और c के अंदर a प्लस b कर रहा हूँ, क्योंकि हमने a की वैल्यू को इंसर्ट करा लिया है यूज़र से, b की वैल्यू को भी इंसर्ट करा लिया है यूज़र से। आफ्टर दैट वी वांट द सम ऑफ दीज टू वेरिएबल, दैट इज a प्लस b, एंड वी आर असाइनिंग द सम ऑफ दीज टू वेरिएबल टू द वेरिएबल c। नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। सेव योर फाइल, go to the run and click on run module. So 20, sorry 10 and 20, 1020। क्या a और b का सम 1020 आएगा? 1020 आएगा क्या? नहीं। तो हमें ये जो है 10 और 20 क्यों मिल रहा है? हमें 10 और 20 क्यों मिल रहा है? The reason is what I told you, that input function always returns the value in the form of string, and on the string we can't perform arithmetic operations, ठीक है। we can't perform arithmetic operations over string values, ठीक है। समझ में आया? अब देखो मैं इसका एक बार टाइप देखता हूँ, टाइप ऑफ ए, ठीक है। 10, 20, देखो समझ में आया? ये स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है? लेकिन मैंने तो यहाँ पर 10 ही प्रेस किया है ना, 10 ही एंटर किया है ना, वैल्यू 10 एंटर की है, लेकिन मुझे रिजल्ट क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। अब आपको प्रूफ मिला कि जो आपका इनपुट फंक्शन है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन हमें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। सो टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू द इंटीजर वैल्यू वी हैव इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है इंटीजर और इसको क्लोज कर देना है इंटीजर फंक्शन के अंदर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीजर फंक्शन? इंटीजर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ वैल्यू to the integer type, okay। here I have to write integer, ठीक है। अब आपको पता चला होगा कि ये डबल ब्रैकेट क्यों आ रहा है। ये जो इनपुट है इसका एक और इसके दो ब्रैकेट होंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, क्लोज पैरेंथेसिस यू कैन से।
ये इंटीजर फंक्शन है, इसकी ओपनिंग पैरेंथेसिस होगी और क्लोज पैरेंथेसिस होगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये हमारा इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, इंटीजर में, बिकॉज वी वांट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड वी नो दैट अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑलवेज परफॉर्म ऑन द इंटीजर और फ्लोट वैल्यू. You can't perform arithmetic operations over string value, right? That's why we are converting string value to the integer value. Now save your file, go to the run, click on run module. Now again it is asking the value of a, that is 10, 20. Here you are getting result 30 and finally the value of a is integer. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया अब आपको? ठीक है, समझ में आया? ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और आपने वैल्यू असाइन मतलब एंटर किया 10। फिर बी में इनपुट बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी एंड यू एंटर द वैल्यू ऑफ बी दैट इज 20. नाउ 10 is 20 इज स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, until or unless you use the integer function. But you have used integer function, that means that you are converting the value 10 and 20 in the integer, and you are assigning the value of a plus b to the variable c, and finally you are printing the value of c, that is 30, and you want to print the type of a, so then you are getting integer. ठीक है, समझ में आया? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप फंक्शन. तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम को सिंपल वे में लिखने के लिए, ठीक है. अगर आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है तो उस टाइम पर हम बेसिक these three functions we use at the basic level. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. नाउ सपोज आप एक वेरिएबल क्या कर रहे हैं, अब देखो मुझे इसको क्या करना है, कमेंट्स में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिपल कोट से क्या कर दूँगा, स्टार्ट करूँगा और ट्रिपल कोट से ही क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा. तो ये अब मेरा क्या बन जाएगा, मल्टी लेवल स्ट्रिंग बोल सकते हैं, मल्टी लेवल कमेंट्स बोल सकते हो. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा कि सपोज ए इक्वल टू में इनपुट, ठीक है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट ए. नाउ सेव योर फाइल, गो टू द रन एंड क्लिक ऑन रन मॉड्यूल. तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, एंटर योर नेम, तो मैंने लिखा गौरव. तो देखो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, गौरव. ठीक है. तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज को भी इनपुट फंक्शन से इंसर्ट करा सकते हैं यूजर साइड से. सो दिस इज द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन. आई होप अब आपको समझ में आया होगा. अगर अब मैं आपको बोलूँ दैट यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम विच इज गिविंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, तो आप इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. आपको सिंपली क्या करना होगा, you just have to write down, you just have to change the operator only, that is star here. Now save your file, go to the run, sorry, ठीक है. now 10, 20, you are getting 200. ठीक है. आई होप अब आपको समझ में आया होगा. सो in the next video
आई विल डिस्कस सम एग्जाम्पल। अब आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स लूँगा और फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। सो थैंक यू सो मच।